अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अहमद और इस चैनल पे हम मुलाकात करते हैं ऐसे प्रोफेशनल्स और एक्सपर्ट से जो अपने यूनिक एक्सपीरियंसेस हमारे साथ शेयर करते हैं। आज के एपिसोड के अंदर हम एक ऐसे एंटरप्रेन्योर से मुलाकात करेंगे जिन्होंने अपनी प्रोफेशनल जर्नी पाकिस्तान से स्टार्ट की, देन ही वेंट टू सऊदी एंड करंटली ही इज बेस्ड इन दुबई। सो लेट्स हैव अ चैट विद हिम एंड सी व्हाट वी कैन लर्न फ्रॉम हिज जर्नी। So viewers, आज हमारे साथ मौजूद हैं हमजा डार। He is based in Middle East and mashallah he's the CEO and founder of an international sourcing business by the name of Legacy Worldwide. Also he's a very senior financial consultant. So चलिए आज इनसे बात करते हैं। Hi हमजा, कैसे हैं आप? जी अस्सलाम वालेकुम, मैं ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह, आप बताइए खैरियत से? वालेकुम अस्सलाम हमजा, I'm fine. How are you doing? Alhamdulillah, all good, all good. Thank you so much for finding time for the show and really appreciate. I know you have a very busy schedule, but thank you for finding time. No, actually it's a pleasure. Thank you very much for inviting me. And it's my pleasure to be able to contribute whatever ways I can to the people out there in the community and the younger ones. Can you tell us a little about how does the journey start from your early years of education to basically where you are now? Born and brought up in Pakistan, Lahore. So I was privileged enough to go to an international school. There I completed my O levels and moved on to the A levels. Probably I was 19 years old when I went into internships and all. Also, I got lucky that I got an opportunity to work with international organizations in the beginning. They were non-profit organizations, but huge global organizations like ActionAid International, which was an advocacy and rights-based organization. And then I moved on to Save the Children. So in total, in Pakistan, I was working with these companies, with these organizations for about like 7-8 years. So based on that, I then moved into completing my ACCA. And then by coincidence, I was visiting UAE for a training through one of the employers that I had. So there I met one of the CEOs of a non-profit organization that was operating out of Saudi Arabia. I had spent around like 1.5 hours with the CEO, who was a very gentleman. And while exiting the meeting room, so he said that, would you consider joining us in Saudi Arabia? And I'm talking about back in 2013. At that time, I was like, 27, 28 maybe. So I accepted that, took it as a challenge, let's go. So that was an organization called Junior Achievements Worldwide. That again was one of the largest organizations in the world working on education or financial literacy के ऊपर. So I was there, worked there for around like 5 years. जिसके अंदर I started off as their head of finance, then moved the ladder to business and support services senior manager. And then eventually I was offered the role for deputy CEO. So that was something which actually gave me a lot of learnings. Different environments के अंदर काम करने का मौका मिला. Plus उस time पर companies के अंदर कई जगह जैसे उतार चढ़ाव आते हैं. So I had to run through a scenario, first time in my experience, where the company was going through a financial crisis. So that is one exposure that I got. Then I moved on to the retail space. So usme I started off working for a fashion and apparel group called Fad International, jinke saath I was associated for around 3 years as their CFO. I had developed by then an inclination towards more onto the governance and organizational development and strategy. Okay. Fast forward, after the 3 years, then I moved on to join a startup. And thereon, we were able to, have set up the full team. I recruited my team members, worked on with the other teams in terms of commercial, in terms of, the account management and all, just to streamline the processes and all. So that was a very, very good experience. And the great achievement was that within 1 year, we were more than 50% of the overall business volume. So within the first year of launch in Saudi Arabia. So that was a commendable thing that I think the whole team of that company, which is HomeSmart, they achieved. अच्छा, इसके साथ साथ कुछ जगहों पर मुझे opportunities मिलती रही and I was always looking forward to contributing and participating in any consulting opportunities. Okay. तो उसमें I got an idea कि यार there is a huge potential. There is a gap that of course new formed companies जो startups हैं उनके पास probably resource की कमी हो सकती है and whatnot. And there is a potential that we can sort of partner with them, grow them up and leverage on our experiences and all. So वो एक मौका मिला that gave me a booster actually. जिसने मुझे मजीद इंक्लाइन किया टुवर्ड्स कि सिर्फ आपका एक कमर्शियल बेनिफिट नहीं होना चाहिए. देयर हैज टू बी अ मोर ब्रॉडर एस्पेक्ट जिसके अंदर यू गिव बैक टू द पीपल, यू गिव बैक टू द कम्युनिटी, यू गिव बैक टू द पीपल हु आर विलिंग एंड वांटिंग टू सीक योर हेल्प. तो उस चीज ने मुझे दैट एनेबल्ड मी टू जॉइन अप विद अ कपल ऑफ कंसल्टिंग फर्म्स एज वेल, जहां पर मैं लीड कंसल्टेंट के तौर पे भी रहा. राइट नाउ इवन आई एम एसोसिएटेड विद अ लीडिंग कंसल्टिंग कंपनी इन सऊदी अरेबिया कॉल्ड क्लेमोर कंसल्टेंट्स.
और वहां पर भी हम लोग स्टार्टअप्स को भी हेल्प कर रहे हैं, हम लोग प्रोसेस में जो कंपनीज आईपीओ के लिए हैं उनको भी हेल्प आउट कर रहे हैं इन टर्म्स ऑफ एस्टैब्लिशिंग कॉर्पोरेट गवर्नेंस, पॉलिसी प्रोसीजर फ्रेमवर्क्स। फिर इसके अलावा उनके कई दफा हमें अकाउंटिंग साइकिल्स, अकाउंटिंग बेसिस को ठीक करना पड़ता है, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ ईआरपीज कम्स अलोंग। तो अ बिगर अम्ब्रेला, बिगर एम्बिट। तो इसमें जो की फैक्टर है दैट इज आई वुड से द एपेटाइट टू लर्न True. more than anything else. It was not financially driven. Financially, I would always say कि पैसा is a byproduct. ये बात बड़ी शायद अजीब लगे लोगों को कि यार हम तो पढ़ते भी इसीलिए, हम काम इसलिए करते हैं और सारा कुछ। बट आई फील कि जो हमने शायद मैनेजमेंट में कभी मैस्लो की थ्योरी पढ़ी थी, मोर देन 70% पीपल डू नॉट वर्क फॉर मनी, they work for self satisfaction. They want to contribute to something which is greater and bigger and beyond their own personal lives. तो वो चीज जो है, आई थिंक दैट इज द की किकर, आई वुड से इन ऑल माय ट्रांजिशंस इन द करियर। एंड आई हैव बीन ब्लेस्ड इनफ अल्हम्दुलिल्लाह कि मुझे अपॉर्चुनिटीज मिलती गई। आई कीप ऑन एक्सप्लोरिंग अंटिल नाउ। मोस्ट रिसेंटली जॉब जो मैं पर्टिकुलरली जॉब की अगर बात करूं तो वो आई वाज एंगेज्ड विद वर्जिन मेगा स्टोर। सो आई वर्क विद देम एज देयर सीएफओ, as a finance director actually. So they onboarded me primarily to assist them into crafting those plans which can potentially be attractive for investors. Okay. Or right now as we speak they are almost in finalizing with one of the investors as well, जो कि start मैंने कर लिया था, but then I had to part ways with them for pursuing something else. Mm-hmm. So and that something else was Legacy Worldwide. Okay. So Legacy, वहां से एक चीज आई, और the basic concept why Legacy came into being was that during my career with retail, consumer goods, e-commerce, the one thing that always gets stuck in your mind, what is the core challenge that these companies would be facing now, they are facing, and they would face in future? That is the supply chain. Okay. So always the challenge will be the supply chain. So are the goods available? Are they in time? Are they up to the quality? Are they always fulfilling the requirements and the desires of the customers? इसके अंदर जो एक इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट आता है which is the technology part now. अब टेक्नोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से हम देखें तो दुनिया बहुत आगे जा रही है। अच्छा, आई हैव बीन इन माय करियर एज वेल, आई हैव बीन ऑलवेज वेरी प्रो टुवर्ड्स ऑटोमेशंस, टुवर्ड्स business intelligence and so on, because I saw, at least at this part of the world, that many decisions were made without being supported by the relevant intelligence, supported by the relevant data. It was very much मेरी intuition ने ये कहा, at times ठीक है, I understand as a business owner now as well that you have to go along with your intuition as well, लेकिन there has to be something that you build on. It cannot be just intuition. So that transformed into me being a little bit more pushy wherever I worked, into going and investing into business intelligence, Power BIs and whatnots. Different types of analysis should be there, which led me to developing KPIs. That is the core. That is how you observe. That is how you monitor a business. तो उसके अंदर भी अगर हम इसको लिंक बात करें सप्लाई चेन के अंदर क्या हो रहा है, तो देयर आर सेवरल इंडिकेटर्स दैट वी आर वर्किंग ऑन। ठीक है, तो द लेवल ऑफ बैक बोन आप कह सकते हो, जिस तरह वो टेक्नोलॉजी है इस वक्त, जिस तरह के एल्गोरिदम्स के ऊपर काम किया जा रहा है, जितनी फास्ट आपकी वो यू विल बी हैविंग दोस टेक्नोलॉजी टच पॉइंट्स और डेटा टच पॉइंट्स, उतना ही बेहतर आप डिसीजन मेकिंग कर सकते हैं, उतना ही बेहतर आप चीजों को लेकर चल सकते हैं। तो coming back again to the legacy, so the idea is to develop a certain ecosystem जहां पर data driven support हम facilitate कर सकते हैं अपने customers को, अपने clients को, and then yet we can partner into sourcing as well. तो हमारा एक बड़ा interesting सा एक crossroads है from service and the goods provision itself, based on our manufacturing background, based on our relations with so many different manufacturers across the globe. When I was trying to summarize your story in my head, it's more about firstly being open to challenges, second exploring what you like, so exploring yourself, and thirdly identifying opportunities कि कहाँ पे मैं add value कर सकता हूँ। So it's a crux of these three जो मुझे समझ आया आपका एक journey starting from development sector then to coming into commercial side और फिर उसके बाद उसके अंदर opportunities ढूंढना, but at the same time इस पूरी journey में मुझे लग रहा था आप अपने आप को भी explore कर रहे हैं और test कर रहे हैं यार ये is this my thing or is this my thing, does this make me happy। फिर आपने मैस्लो का जिक्र किया तो मेरी और बात confirm हो गई कि वाकई you have been trying to get to your self actualization level। आप सऊदी को देख रहे हैं पिछले 10-11 सालों के अंदर, how is it changing, क्या आपको नजर आ रहा है? पहले हम चेंजेस पे बात करते हैं फिर उसके बाद आगे चलते हैं। अच्छा, द ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी ऑफ सऊदी अरेबिया जो सही मायनों में हमें नजर आई, दैट वाज पोस्ट 2016। उसके अंदर जो एक बहुत पिवटल रोल है, दैट इज विदाउट एनी डाउट इज MBS, मोहम्मद बिन सलमान। So I was fortunate enough actually when I was working with Junior Achievement Worldwide कि हम लोग कुछ प्रोग्राम्स पे काम करते थे मिनिस्ट्रीज के साथ,
we were very much inclined in working on with Ministry of Education because we were working with kids in schools, universities and all. फिर इसके साथ साथ हम मिनिस्ट्री ऑफ लेबर के साथ बहुत ज़्यादा क्लोजली एसोसिएटेड थे, जहाँ से हमें इंसाइट्स मिल रही थी कि यार वेयर द सऊदी मार्केट फॉर वो जो लेबर के पॉइंट ऑफ व्यू से कहाँ जा रही है. पहली हमने जो चीज़ देखी वो गवर्नमेंट ने अपने आप को ट्रांसफॉर्म कर लिया इनटू परफॉर्मेंस बेस्ड. तो उससे क्या हुआ कि दैट स्ट्राइक द बैलेंस अ वेरी क्विक वन कि यार गवर्नमेंट जॉब जो है वो आपकी कोई सिक्योरिटी वाली सीन नहीं है. यू हैव टू वर्क इट आउट. ठीक है, आपको अपना हार्डवर्क, अपने जो आपके डिलीवरेबल्स हैं उनकी बेसिस के ऊपर यू हैव टू प्रोग्रेस. अदरवाइज वो चीज नहीं होगी कि भाई अच्छा अब आपका अगला वाला जाएगा तो आपकी बारी आ जाएगी, यू गो एंड यू गेट प्रमोटेड एंड यू एंजॉय एंड स्टफ लाइक. तो उस टाइम पे आई रिमेंबर कि उन्होंने एक कमीशन बनाया व्हिच वाज JCEC, that was called that was mainly for looking into opportunities कि किस तरह से हमारी जो लेबर मार्केट है उसको ट्रांसफॉर्म किया जाए. तो I was happy to be part of some of those discussions as well. उसमें they hired the best consultants, आपके McKinsey's और उसके अलावा PwC's and इस तरह के सारे लोग थे. और उसमें they started developing a proper roadmap. And not only developing that roadmap, they made them stay for the initial implementation and have it transition into their local people as well. अब इनकी जो population है that is also a majority of it is under 30. Okay. So under 30 means they should be most likely in university or at the earlier age of their careers. तो बेसिक चैलेंज जो गवर्नमेंट के पास था या जो अभी भी वो फाइट जिसको कर रहे हैं कि हाउ टू पुट देम ऑन ट्रैक ऑफ टेकिंग दी जो भागदौड़ कंट्री की है या कंपनीज की है या जिस भी डोमेन में हो जाते हैं तो उसको किस तरह से आगे लेंगे. एंड व्हेन दे फिगर आउट कि कहाँ पे हमारी गैप्स हैं तो उसके अंदर बड़ा इंपॉर्टेंट एक स्टेप लिया गया कि हर यूनिवर्सिटी के अंदर एंटरप्रेन्योरशिप सेंटर बनाया जाए. Okay. ठीक है, एंड आई एम टॉकिंग समथिंग अराउंड बैक 2017 अर्ली 17 I'd say. ठीक है, तमाम यूनिवर्सिटी में एंटरप्रेन्योरशिप सेंटर्स बनाने का फायदा क्या हुआ कि पीपल वर इंक्लाइंड ऑटोमेटिकली टू थिंक आउटसाइड द बॉक्स, bring on their ideas, and then they opened up into support by the government because they had the money, they had the financial resources to actually pump in and give it a try. इसमें जो एक चीज इंपॉर्टेंट थी वो ये कि दे प्रेफर्ड उनके स्टूडेंट्स जो हायर एजुकेशन के ऊपर जा रहे हैं उनके लिए बहुत ज्यादा आप कह सकते हैं जो स्कॉलरशिप्स हैं वो प्रोग्राम्स थे, क्रॉस एक्सचेंज प्रोग्राम्स बहुत सारे थे. एंड देन the environment that Saudi government was providing at that time and even now that compelled those students to come back, unlike other parts of the world. जिस तरह फॉर एग्जांपल अगर हम पाकिस्तानी अपनी बात करते हैं तो अगर हमारे यहाँ किसी की स्कॉलरशिप लगती है तो इसका मतलब है कि भाई वो फिर वहीं सेटल होंगे, वो वापस आने का सीन नहीं. ठीक है, तो सऊदी अरेबिया इस पॉइंट ऑफ व्यू से डिफरेंट है. ठीक, तो जब ये सारा सिनेरियो स्टार्ट हुआ इवॉल्व करना एंड देन वी सॉ दोज करेक्टिव एक्शंस बीइंग टेकन, फिर इसके अंदर एक सिनेरियो जो बना एक्सपैट कम्युनिटी के लिए, क्योंकि ऑब्वियसली अगर हम अगेन गोइंग बैक टू डेमोग्राफी तो आप यूं समझे कि 51-52% जो है या 55% आई बिलीव इज द लोकल पॉपुलेशन एंड द रेस्ट 45% समथिंग अराउंड जो है वो एक्सपैट पॉपुलेशन. सो इट इज अ बिग चंक. लेकिन इवेंचुअली क्या है कि प्रायोरिटी एंड प्रेफरेंस हैज टू बी गिवन टू इट्स लोकल सिटीजंस एंड द पीपल ऑफ द कंट्री, which is true to the core for any country. जो भी डेवलप करना चाहता है, जो भी लॉन्ग रन में अपने लोगों को आगे लेकर जाना चाहता है, खुद ग्रो करना चाहता है, दैट्स द की. तो उस सिचुएशन को देखते हुए वहां पे फिर ट्रांजिशन एक शुरू हुई जहां पर कुछ फीस लेवी की गई इन टर्म्स ऑफ आपका कह लें जिसे हम डिपेंडेंट फीस के नाम से जानते हैं यहाँ पर. तो वो जब फीस इम्प्लीमेंट की गई और उस टाइम पर आई रिमेम्बर कि बहुत सारे लोगों ने जो है ना वो घबरा गए. They were used to having everything for free, but then eventually what happened was कि यार अच्छा अब तो मुझे आज 200 per month per family member pay करना है, then it will go to 300, then it would reach up to 400. Okay. So eventually the cost of living started increasing for the expats. That is something what happened, जिसकी वजह से बहुत से लोगों ने families भेजी, बहुत से लोग they planned somewhere else, they moved out to Canada, US, जहाँ जिसको मौका मिल रहा. What happened, that itself created a gap in the market. फिर आपको बहुत ज्यादा जो कॉम्पोनेंट काम के लोग थे वो मिलने कम होते जा रहे हैं. ठीक है, अच्छा उसको केटर करने के लिए गवर्नमेंट हैड स्टार्टेड एम्फसाइजिंग ऑन अ लॉट ऑफ ऑटोमेशंस. अगर हम बात करें आई थिंक अभी कल परसों की रिपोर्ट है कि जो सबसे ज्यादा जो तेजी से टेक्नोलॉजी अडेप्टेशंस हैं उसमें सऊदीज रैंक नंबर 4 आई थिंक इन 2024. ठीक है, तो ओवरऑल इकोनॉमी को उठाकर वो सारा कुछ ई इकोनॉमी एंड एवरीथिंग इज सो स्मूथ कि मुझे एट टाइम्स लोग समझते थे दुबई में आके बड़ा कुछ आगे है और एडवांस है और ऑल. I miss some of the things in Saudi.
ठीक है, मतलब वो इतनी लेवल पे उन्होंने डेवलप कर लिया अभी भी, एंड दे आर कीपिंग ऑन मूविंग एट दैट पेस। उससे फायदा क्या हुआ कि उससे उनको बहुत टेक्निकल पर्टिकुलर स्किल्स चाहिए थी। अब अभी भी अगर हम देखें तो जो हायरिंग्स वो कर रहे हैं नॉर्मली, वो जो आपकी एक टिपिकल एडमिनिस्ट्रेटिव जॉब्स होती हैं, दे आर वेरी लिमिटेड। ओके, अब मोर एक्सपर्ट लेवल जॉब्स, आपकी स्पेशलाइजेशन बेस्ड चीजें, ठीक है। और उसके अंदर भी ऑफ कोर्स जब आप कंपटीशन की बात करें, देन यू प्रेफर यू कम्पीट विद द लोकल्स। फिर उसमें क्योंकि उनकी गवर्नमेंट उन पे इन्वेस्ट कर रही है, देर उनको कोर्सेज भी करवाए जा रहे हैं, उनको हर तरह की फैसिलिटेशन भी हो रही है, तो दैट इज वन एरिया वेयर इट बिकम्स अ लिटिल बिट मोर डिफिकल्ट फॉर द एक्सपर्ट्स। सो जो एक इस सारे सिनेरियो के अंदर जो अच्छी बात है विच इज फॉर द लोकल्स, और एक थोड़ी सी जरा चैलेंज बढ़ गया किसके लिए, फॉर द एक्सपर्ट्स, ठीक है। अच्छा, इसके अंदर क्या था, एक और चीज के जो हायर इन्फ्लक्स था, अगर हम टॉप रैंकिंग 2-3 पॉपुलेशन देखें या ओरिजिन देखें जो सऊदी अरेबिया में रिजाइड करते हैं लोग, उसके अंदर इंडिया है, उसके अंदर पाकिस्तान है, उसमें फिलीपींस है। मेजरली ऑल या मेजॉरिटी ऑफ देम रिलेटेड टू ब्लू कॉलर्स, मेजॉरिटी ऑफ देम रिलेटेड टू अनस्किल्ड सॉर्ट ऑफ वर्क, ठीक है। तो अब की मार्केट अगर सऊदी की हम वापस आए, तो अब सऊदी के अंदर देयर इज अ स्केर्सिटी ऑफ दैट टैलेंटेड पूल जिसने चीजों को नेक्स्ट लेवल पे लेके जाना है, बिकॉज ऑफ ऑटोमेशन, बिकॉज ऑफ अडेप्टेशन फॉर दी टेक्नोलॉजी एंड ऑल। अब आपको स्पेशलाइज, अब सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट चाहिए आपको। ओके, नाउ टू कर दैट, अब वो क्या अट्रैक्शन है वहां पे अब अट्रैक्शन जनरेट हो रही है फॉर यूरोपियंस, फॉर अमेरिकन, फॉर द वेस्टर्न वर्ल्ड, ठीक है। बिकॉज अगैन स्टिल द सैलरी इज टैक्स फ्री, तो यहाँ पे आपको कुछ और वो नहीं पे करना, ऑफ कोर्स जो आपकी कॉस्ट ऑफ लिविंग है दैट इज समथिंग दैट यू कैन मैनेज। लेकिन अब ये है कि हमारे चैलेंजेस जो एक्सपर्ट्स फ्रॉम पाकिस्तान या फ्रॉम दी साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज, दैट इज ग्रोइंग। तो अगर तो आपके पास टेक्निकल एक्सपर्टीज और अगर आपके पास सर्टेन स्किल्स हैं, तो देन यू कैन प्रोग्रेस, देन यू कैन प्रॉब्ली फिट इन। तो ये इन अ सॉर्ट ऑफ नटशेल इस वक्त सऊदी की जॉब मार्केट के पॉइंट ऑफ व्यू से। so एक तो उनका inclination है towards of course local Saudis, hiring them, equipping them for higher positions and ultimately taking over, और साथ साथ आपने कहा कि यूरोपियंस को या दूसरी वेस्टर्न साइड से लोगों को हायर करना, बट प्राइमरली तो उनकी वेस्टर्न साइड से हायर करने की जो मोटिवेशन है वो यही है कि दे वांट टू ब्रिंग इन सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट्स, दे वांट टू ब्रिंग इन पीपल हु आर ऑलरेडी far ahead in their game so that they can also catch up on certain things. So इस सिनेरियो के अंदर आपको क्या लगता है कि किस तरह का टैलेंट पूल के लिए अभी भी अपॉर्चुनिटी है सऊदीया में, स्पेशली फ्रॉम पाकिस्तान इंडिया, पाकिस्तान की अगर हम बात करें या इंडिया की बात करें, किस तरह का टैलेंट पूल अभी भी वहाँ पे अपॉर्चुनिटीज एक्सप्लोर कर सकता है और उसको मिल सकती है? देखिए, इसमें अगर हम बात करें कि इस वक्त सऊदी अरेबिया के अंदर टॉप 3 इंडस्ट्रीज या टॉप 3 एरियाज जहाँ पे सऊदी गवर्नमेंट इज इन्वेस्टिंग अ लॉट, वो कौन से हैं, ठीक है। एंड देन वी कैन गो इनटू कि यार अच्छा हमारे पास कौन सा टैलेंट है, वी कैन प्रॉब्ली गो इनटू दैट साइड। तो उसमें एक पहली इंडस्ट्री, एक तो वो ऑब्वियसली एक पेट्रोलियम पावर्ड कंट्री है, वो तो एक फैक्ट है, दैट इज देयर। लेकिन जब से ये एक विजन 2030 की बात चल रही है, द विजन 2030 इज ट्राइंग टू रीडिफाइन सऊदी अरेबिया, रीडिफाइन इन अ वे कि उसकी इकोनॉमी को डाइवर्सिफाई कर। तो इमीडिएटली आपकी पेट्रोलियम से निकल कर दे आर इन्वेस्टिंग हेवीली इनटू जो आपकी रिन्यूएबल एनर्जी है, ठीक है। अब उसके अंदर एक सर्टेन डिफरेंट सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट्स की जरूरत है, ठीक है। देन वी कैन रेजोनेट कि अच्छा यार किस जगह से वो टैलेंट पूल ला सकते हैं, ठीक है। फिर इसके अलावा दूसरी चीज जो सऊदी अरेबिया जिस तरह ओपन अप हो रहा है, एंड द वे दे हैव in mind in terms of increasing the population, not only the internal local population but the expats as well. तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से देयर इज अ लॉट बीइंग इन्वेस्टेड इनटू द रियल एस्टेट। हमने मेगा और बल्कि जो टर्म ऑफ गीगा प्रोजेक्ट्स है वो सुनना शुरू किया सऊदी अरेबिया के अंदर, बी इट नियोम, बी इट व्हाटएवर अदर प्रोजेक्ट्स दैट दे आर, बट नियोम इटसेल्फ इट्स टू बिग। फिर आपने मुरब्बा का सुना, फिर आपने किदिया की बात करते हैं, देयर ऑन। तो ये दीज गीगा प्रोजेक्ट्स विल रिक्वायर एक्सपर्टीज इन डिफरेंट डोमेन्स। फिर इसके अलावा इनके अंदर एक इंक्लिनेशन है टुवर्ड्स हैविंग अ बूस्ट ऑफ एक एंटरटेनमेंट को भी ग्रो करना है। आप देख रहे हैं जैसे बहुत सारे, अब इस वक्त रियाद सीजन होता है, जद्दा सीजन है, देयर आर मिलियंस ऑफ पीपल विजिटिंग। तो उसके अंदर आपकी हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री भी ऑटोमेटिकली, बिकॉज इट टर्न्स अ लॉट ऑफ व्हील्स, लॉट ऑफ साइकिल्स, ठीक। हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री की आप बात करें, एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री इटसेल्फ की बात करें, आप टैलेंट ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स की बात करें आप, फिर इसके अलावा आप और भी जो भी फॉर्म्स ऑफ आर्ट्स हैं उनकी अगर बात करें, देयर इज अ लॉट ऑफ इन्वेस्टमेंट गोइंग अराउंड दैट, एंड देयर इज लॉट ऑफ अट्रैक्शन। क्योंकि लोगों के लिए एक तो सऊदी अरेबिया फॉर क्वाइट लॉन्ग टाइम इट वाज अ टैबू कि यार पता नहीं कैसे लोग हैं, क्या है, पता नहीं अभी भी सहरा में रहते हैं, खैमे में रखते हैं, और पता नहीं सो दैट इज समथिंग जो हमने देखा पिछले 2 साल के अंदर, वो बिल्कुल स्टैटर हो गए। अभी भी लोगों के हैं, बट नाउ बिकॉज सऊदी इज ओपन, anybody and everybody can come in and experience it by themselves.
अभी हम अगर बात करें एक डेस्टिनेशन है, सिर्फ एक डेस्टिनेशन अल उला, ठीक है, दैट इज नियर मैदान साले और वो मदीना के करीब है। वो एक पुरानी कौम, एक हिस्टोरिकल प्लेस है, उसको इन्होंने ट्रांसफॉर्म किया टुवर्ड्स टूरिस्टिक अट्रैक्शन। वहां पे आपको रिजर्वेशन नहीं मिलती अब, एंड दे आर नॉट चीप बाय द वे, दे आर एक्सपेंसिव, ठीक है, $1500-2000 की बात मैं कर रहा हूँ। बिल्कुल। फिर वहां की ट्रांसपोर्ट, वहां की चीजें, तो वहां पे जब वो इस साइड पे इन्वेस्ट कर रहे हैं तो दे नीड एक्सपर्टीज ऑन टू दोज एरियाज, ठीक है। तो रियल एस्टेट की हमने बात कर ली, रिन्यूएबल एनर्जी की हमने बात कर ली, और इसके अलावा व्हाट आई फील के एक जो अच्छी चीज चल रही है यहाँ, विच इज देयर फोकसिंग एंड देयर बूस्टिंग ऑन स्टार्टअप्स, ठीक है। Okay. अब स्टार्टअप्स के अंदर एक एपेटाइट जो चल रहा था पिछले कुछ अरसे में, वो हाईली टेक बेस्ड कंपनीज आपके, अब अगर हम बात करें फॉर एग्जांपल ई कॉमर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, और जो मार्केट प्लेसेस है उसके अंदर भी, तो आप देखें कि उसका जो ग्राफ है दैट इज गोइंग, यू नो, एक बहुत ज्यादा आपको एक स्टीप इंक्लिनेशन नजर आती है उसमें। तो उन्होंने जो इकोसिस्टम है अपना, वो इतना अच्छा डेवलप कर लिया कि आई फ्रॉम माई काउच कैन डू वट एवर, ऑर्डर वट एवर, रिटर्न वट एवर, इतना स्मूथली। तो उस चीज के अंदर बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट हो रही थी, ठीक है, इंटरनेशनल कंपनीज भी इन्वेस्ट कर रही थी। फूड डिलीवरी का एक कॉन्सेप्ट जो पाकिस्तान में भी है और दुनिया की जगहों पर भी है, सऊदी अरेबिया में भी आया, एंड वी सॉ वेरी रिसेंटली one of the leading food delivery company called Hunger Station that was acquired by another international organization, international company, और उसका buyout जो है that was in more than, उसका जो फाउंडर का शेयर उन्होंने खरीदा that was more than $240 million. Okay. ठीक है, तो that is another area where investment is being made. सऊदी अरेबिया के लिए और एक चीज important है to understand as of now at least, although they are attracting huge partnerships with different countries, investors from across the globe, लेकिन अभी जो उनके चार्ट पे टॉप पे इन्वेस्ट कर रहा है दैट इज द सॉवरेन फंड इटसेल्फ। ओके, ठीक है, उसके अंदर पीआईएफ जो पब्लिक इन्वेस्टमेंट फंड इन्होंने क्रिएट किया है, दैट इज द कोर व्हिच इज, यू नो, पंपिंग इन द मनी फ्रॉम अदर सोर्सेज, अदर पॉकेट्स ऑफ द इकोनॉमी। तो उसमें उनके जो इंटरेस्ट है वो अगर इन प्रोजेक्ट्स के ऊपर है, तो देन दिस इज द प्लेस वेयर हमें देखना है कि यार हम लोग वहां क्या वैल्यू ऐड कर सकते हैं। क्या हमारे पास रिन्यूएबल एनर्जी के अंदर एक रिसोर्सेज हैं? क्या हमारे मुल्क में हम लोगों ने कहीं पर काम किया है इस तरह का, या कहीं ऐसा कुछ चल रहा है? ठीक है, फिर इसके अलावा हम बात करते हैं अगर रियल एस्टेट की और उस तरह की डेवलपमेंट की, तो डिड वी कम अक्रॉस द लाइक्स ऑफ, अगर देखें आप यूएई के अंदर जिस तरह से दुबई लेट्स सपोज जिस तरह से है, जिस तरह का एक डिजाइन और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप्ड है, सऊदी इज गोइंग टुवर्ड्स दैट। अभी हम सुन रहे थे शायद कोई 1-1.5 साल में, 2 साल में जो बुर्ज खलीफा है, दैट रिकॉर्ड विल बी ब्रोकन बाय अनदर टावर दैट इज बीइंग बिल्ट इन सऊदी अरेबिया। Yep, I read that. ठीक है, तो उस तरह के जब इंफ्रास्ट्रक्चर की आपकी चीजें हम बात करते हैं, तो उसमें क्या हम कर सकते हैं, हमारी इंजीनियरिंग के लेवल्स या स्किल्स कहाँ पर है। ठीक है, फिर इसके अलावा जब हम बात करें आगे दूसरे सेक्टर्स के अंदर, ई कॉमर्स के अंदर हम कहाँ खड़े हैं, मतलब पाकिस्तान की अगर मैं इसको टू लिंक इट बैक विद पाकिस्तान, प्रॉब्ली यू हैव व्यूअरशिप इन इंडिया एज वेल। इंडिया के अंदर देयर इज अ ह्यूज इकोसिस्टम अराउंड ई कॉमर्स। ठीक है, अब पाकिस्तान में अगर आप देखें तो यू फाइंड रेयर कंपेटिटर्स, मतलब टू नेम अ फ्यू, आपको दराज मिलेगा मेजॉरिटी जो एक बड़ी मार्केट कैप्चर शेयर लेकर बैठा हुआ है, बट अदर देन दैट आप कहाँ सुनते हैं? एंड अगेन व्हेन यू गो थ्रू द प्रोसेस, वो इकोसिस्टम डेवलप नहीं है। तो जब हम इस तरह की इकोसिस्टम और उसकी बैकग्राउंड से निकल कर आते हैं, हमारे जो लोग हैं, और एंड दे लुक इनटू समथिंग इनटू सऊदी अरेबिया या अदर पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, तो वो देखना है कि वहां एक डिस्कनेक्ट आ जाएगा। द थिंग्स दैट आर बीइंग रन इन आवर पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, दे आर नॉट बीइंग रन द सेम वे। सो जो आपने उससे बात की, बिल्कुल ठीक बात थी कि दे आर इवन सऊदी अरेबिया व्हेन इट्स टॉकिंग अबाउट ग्रोथ एंड, यू नो, डेवलपमेंट एंड ऑल, they will be looking automatically to somebody who is ahead of them, not behind. True. जो हमारा इसमें एक चीज आती है वो एक है कि हमारे अंदर एक तो लर्निंग कैपेसिटी होनी चाहिए, अडेप्टेबिलिटी होनी चाहिए, एंड द थर्ड थिंग जो सऊदी अरेबिया में या किसी और मुल्क में भी लगता है कि पीपल कमिंग फ्रॉम पाकिस्तान कैन बी गुड रिसोर्स, कैन बी डेडिकेटेड, कैन बी ट्रस्टवर्दी। ये सारी कैटेगरीज, ये जो 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 आप कह लें कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, दे आर स्टिल अवेलेबल और इसको लोग वैल्यू करते। हाउएवर ऑन द अदर साइड, जो अगर आप बात करें इक्वल पे की, तो दैट इज समवेयर वहां पे थोड़ा सा एक कन्नी खा जाते हैं लोग। ठीक है, तो पाकिस्तानी पासपोर्ट की बेस के ऊपर यू कैन नॉट कंसिडर कि आप यहाँ पर आएंगे और आपको ऐसे ही उसी लेवल पे, इवन सेम लेवल पे आप जॉब कर रहे हैं, तो आपको सिमिलर रेम्यूनरेशन या सिमिलर बेनिफिट्स मिलेंगे व्हाट आर बीइंग पेड टू अ यूरोपियन और व्हाटएवर अदर नेशनलिटी या इवन लोकल नेशनलिटी। तो ये चीज जरूर जेब में रखें और इससे डीमोटिवेट ना हो, इससे डीमोटिवेट होने की हमें जरूरत नहीं है। दिस इज द रियलिटी, दिस इज द फैक्ट, एट लीस्ट फॉर नाउ। बाकी ये कि जैसे जैसे आप प्रूव करते जाते हैं, यू बिकम अ सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट, तो देन फिर आपका कंपैरिजन अपने साथ से होता है, फिर यू नॉट कंपीटिंग विद एनीबॉडी एल्स। वेरी राइट। और जो उसी बात पे अगर हम बिल्ड करेंगे, इफ यू कमिंग फ्रॉम पाकिस्तान, इफ यू हैव द राइट सेट स्किल सेट,
फिर भी अगर आपको आउटशाइन करना है या अगर शॉर्टलिस्ट होना है उनके क्राइटेरिया के ऊपर, फॉर एग्जांपल सऊदी के लिए या मिडल ईस्ट के अंदर, आई थिंक एक और अपॉर्चुनिटी जो पिछले 8-10 सालों में निकली है हमजा, एंड यू मे बी हैव अ बेटर आइडिया ऑफ इट, ये ई कॉमर्स और इस सब का एक्सपोजर ज़रूरी तो नहीं है कि शायद कोई पाकिस्तान से बाहर जाके लेगा, पाकिस्तान में रह के भी तो आप इतना कुछ लाइक फ्रीलांसिंग है जिस तरह की आप दे सकते हैं. सो फॉर एग्जांपल मैंने अमेजोन की, आई नो अमेजोन के अंदर और बहुत ड्रॉप शिपिंग वगैरह हो रही है, बट अब ई कॉमर्स की बहुत सारी ऐसी वैकेंसीज हैं जो आप पाकिस्तान में बैठ के कर सकते हैं, एंड अ बिट ऑफ एक्सपोजर आपको अहेड ऑफ गेम कर देता है. एंड देन विद दैट प्रोबेबली अगर आप किसी वैकेंसी के लिए सऊदी वाली साइड पे या मिडल ईस्ट में अप्लाई करते हैं, देन योर प्रोफाइल इज टोटली डिफरेंट बिकॉज यू हैव बीन इन दैट, आपको एक्सपोजर मिल चुका है. तो आई थिंक वेरी राइटली सो, वेरी राइटली सो. इसमें सिर्फ एक चीज मैं जरूर ऐड करूंगा कि जो फ्रीलांसिंग की अगर हम बात करें तो if I'm not mistaken, probably it was 2021 or early 2022, I guess so. So अब एक जो चीज आउटसोर्स की जाती थी सऊदी अरेबिया से बहुत ज्यादा, दैट वाज, और जनरली कहीं भी किसी मुल्क में की जाती, दैट इज बीपीओ, business process outsourcing, which is call centers and things like that. They implemented a regulation which barred any and every company from doing that. okay. ठीक है, उसके अंदर ऑब्वियसली उनके अपने इंटरेस्ट हैं कि यहाँ के लोकल लोगों को इम्प्लीमेंट किया जाए, लैंग्वेज के इश्यूज आते हैं, तो वो एक देयर विल बी सर्टेन बैरियर्स ऑफ कोर्स, बट अगर आपके पास सर्टेन टाइप का एक्सपोजर है, फॉर एग्जांपल अगर आप पाकिस्तान में बैठ के अमेजोन के साथ काम कर रहे हैं, नॉट इन टर्म्स ऑफ ड्रॉप शिपिंग या पीएल या वो सिनेरियो में नहीं, बट यू आर डूइंग सर्टेन जॉब फॉर देम, तो ऑफ कोर्स उसका एक आपको एज मिलता है, यू बिकम एन अमेजोन एम्प्लॉय ऑफ सॉर्ट्स. ठीक है, तो डेफिनेटली इस तरह की चीजों में आप अपने आप को जितना ज्यादा बाहर की दुनिया से एंगेज कर सकें, देयर इज I'd say एक अनफॉर्चुनेट सिचुएशन चल रही है पाकिस्तानीज के साथ, which is अभी हमने देखा कि इंटरनेट के इश्यूज आने शुरू हो गए. ठीक है, उससे बहुत लोगों के लिए प्रॉब्लम आया. फिर फ्रीलांसिंग के अंदर भी हम लोगों का जो वो बहुत सारे अकाउंट्स हैं वो नहीं चलते वहां पे, पेपैल का इशू, एंड देन वी टॉक अबाउट फाइवर एंड ऑल जो मेजर प्लेटफॉर्म्स हैं, तो हमारे लिए कुछ लिमिटेशंस तो हैं. ऑल्दो अगेन नॉट सेइंग दैट ये चीजें नहीं हो सकती, दीज आर द कीज. ये आपने जो बात की बिल्कुल ठीक बात है कि हम जैसे जैसे बाहर का एक्सपोजर लेते रहेंगे उतना हम अपने आप को अपस्किल करते जाएंगे, एंड उसके बाद जैसे ही हम किसी भी मार्केट में जाना चाहेंगे तो विल बी अ ग्लोबल, आपका जो मैन पावर है ग्लोबल ह्यूमन रिसोर्स का पार्ट है. ट्रू. ठीक है, वी नॉट कन्फाइंड टू अ सर्टेन थिंग. या एब्सोल्युटली. थोड़ा सा अनकन्वेंशनल सा सवाल है हमजा, बट मे बी इट साउंड्स अ बिट, बट हाउ मच डज लैंग्वेज प्ले अ रोल? फॉर एग्जांपल पाकिस्तान में बैठ के हम सब अरबी पढ़ते तो हैं ही, बट इफ आई फॉर एग्जांपल लर्न अरबिक और मुझे इनका वो जो एक इंटरमीडिएट लेवल होता है या स्कूल लेवल होता है उस लेवल की मुझे अरबिक आ जाती है, बहुत ही इंतहाई फ्लुएंट नहीं लेकिन नॉर्मल आ जाती है, डज दैट प्ले अ रोल इन माय करियर ग्रोथ? डज इट एक्ट एज अ प्लस? डेफिनेटली दैट वुड ऐड एज अ बिग कैटलिस्ट. देखें, इसमें जो इम्पोर्टेंट चीज है वो समझने की कि किसी भी मुल्क की लीगल लैंग्वेज, ऑफिशियल लैंग्वेज का आपको आ जाना इज समथिंग दैट मेक्स यू मोर एप्ट, मोर अडेप्टेबल, मोर अंडरस्टैंडिंग ऑफ व्हाट्स गोइंग अराउंड यू. ठीक है, बहुत सारी चीजें ट्रांसलेशन में गुम हो जाती है. आपके सारे कॉन्ट्रैक्ट्स, लीगैलिटीज, पेपर वर्क, डॉक्यूमेंटेशन, द फर्स्ट लैंग्वेज इज अरबिक विदाउट एनी डाउट और एनीथिंग, राइट? तो अरबिक अगर आपको आ जाए तो ऑफ कोर्स दैट गिव्स यू अ बिगर, मतलब उसमें आपको एक क्या कहते हैं, एक प्लस एडेड वैल्यू जरूर है. हाउएवर जो अभी रिसेंट टाइम्स के अंदर देखा जा रहा है, जिस तरह से मार्केट इसमें ग्रो कर रही है, अरबिक बिकम्स सेकेंडरी फॉर हाई लेवल पोजीशंस. ये बड़ा एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है. अगर तो आप मिड टीयर, लोअर टीयर की जॉब्स की बात करें तो अरबिक वुड प्ले अ पिवटल रोल. ठीक है, बट क्योंकि अब इंटरनेशनली एक्सपर्ट्स आके बैठ रहे हैं, इंटरनेशनल लोग आ रहे हैं, एंड नॉट एवरीबॉडी इज इक्विप्ड वेरी वेल विद अरबिक, ऑल्दो ठीक है प्रेफरेंस होती है, बट अगर अब आप फॉर इंस्टेंस, अगर अब आप सोशल मीडिया का दौर है, यू गो टू ट्विटर और एक्स, और आप जाके वहां पर उनकी जो गवर्नमेंट के रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, मिनिस्टर्स हैं, यू कैन लुक इनटू देयर स्पीचेस व्हाट दे आर डिलीवरिंग इन सिलिकॉन वैली. ठीक है, जो इस लेवल के ऊपर आप काम करें तो ऑब्वियसली लेस लाइकली आपके अरबिक की स्किल को बहुत ज्यादा होगी, बट ऑफ कोर्स यू गेट अ सोशल एंड कल्चरल एज. कि आप जब वहां के लोकल से बात करें, दिल प्रेफर, दे विल लाइक, जैसे हमारे साथ पाकिस्तान में कोई आता है, कोई अंग्रेज, कोई उर्दू में बात करने की कोशिश करते हैं, तो वी रियली अप्रिशिएट इट एंड वी ट्राई टू गो एक्स्ट्रा माइल. तो वो वाला एज दैट गोज अ लॉन्ग वे बाय द वे, एंड दैट इज नॉट इवन गोइंग टू बी वो किसी एक लेवल के ऊपर नहीं है. हाँ, वर्क एनवायरनमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से एट हायर लेवल प्रॉब्ली इंग्लिश माइट डू, लेकिन ये है कि जितना ज्यादा अगर आपको लोकल लैंग्वेज आती है तो दैट ऑलवेज एड्स. माय थॉट प्रोसेस वाज कि अगर मैं फॉर एग्जांपल बात करूं, फर्स्टली पहली तो ये थी कि जब मुझे अरबिक में थोड़ी सी सीख लेता हूं तो मैं किसी मुल्क में अगर जा रहा हूं, उसकी लैंग्वेज मैंने सीखी है, तो वो जो एक पहला बैरियर होता है ना कि इस पर ट्रस्ट करूं मैं कि ना करूं, या इसके अंदर किक कितनी है, ये मुझे मेरा फायदा उठाना चाह रहा है या मेरे पास जॉब करना चाह रहा है,
जब मैंने अपने आप को प्रेजेंट कर दिया ना कि यार मैं तो अरेबिक सीख रहा हूँ, लाइक आई वांट टू लर्न दिस लैंग्वेज, आई नो मेरा एक रिलीजियस एस्पेक्ट भी है, बट प्राइमरीली सो दैट आई कैन इंटीग्रेट इन योर सोसाइटी. सो आई थिंक वो एक इनिशियल खत्म हो जाता है. फिर दूसरी जो आपने बात की ना हायर पोजीशंस वाली, आई टोटली एग्री, लेकिन मैं इस वक्त उस फनल से सोच रहा हूँ हमजा, इफ आई एम स्टडीइंग इन पाकिस्तान एंड इफ आई एम लोअर टू मीडियम टियर प्रोफेशनल, तो उसके लिए लैंग्वेज जरूरी है, क्योंकि जिस प्रोफेशनल को हायर टियर पे सऊदी हायर करता है, मैं जितने लोगों को जानता हूँ, उसको ऑलरेडी यूरोप और अमेरिका में ऑफर्स होती हैं. You know, I'm talking about the CTOs and the CCOs and the COOs. 100%. मेरी पिछली कंपनी, I'm not going to quote his name, उसने बड़ी मुश्किल से ऑफर एक्सेप्ट की सऊदी जाने के लिए. आई न्यू कि उसको ऑफर कतर वाले भी बुला रहे थे, टेलीकॉम का है एक्सपर्ट वो बहुत बड़ा, उसको यूरोप में भी ऑफर्स थी, उसको एम्स्टरडेम में और जगह पे भी यूरोप के अंदर ऑफर्स थी, बट वो गया. सो मेरी ऑडियंस वो इस वक्त नहीं है जिनको ऑलरेडी ऑफर्स होती है, वो तो अंग्रेजी चला लेंगे, वो तो जो भी बोलेंगे उनके साथ ट्रांसलेटर भी आ जाएगा. लेकिन जो मेरी मेन ऑडियंस है वो हैं जो मीडियम या लोअर टियर पे हैं, या जो अपॉर्चुनिटीज ढूंढ रहे हैं. तो आई थिंक जिस तरह आपने कहा लैंग्वेज कैन प्ले अ बिग रोल, राइट? डेफिनेटली. लेकिन आपने जैसे बात की और जो हम पहले कह रहे थे कि किसी भी कल्चर के करीब जाने के लिए सबसे पहली चीज आपकी लैंग्वेज है. आप किसी से बात करेंगे तो दे विल ओपन अप विद यू, आपसे डिस्कस करेंगे, एनेक्डोट्स होंगे एंड व्हाट नॉट. तो लैंग्वेज वुड डेफिनेटली ऑलवेज प्ले अ वेरी क्रूशियल एस्पेक्ट. आपको थोड़ी सी भी आती है तो पीपल वुड टेक थिंग्स वेरी डिफरेंट वे. ओके, another question for you. अगर आप जिस तरह आपने बात कहा सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट्स आर हाईली वैल्यूड एंड ट्रू, आई थिंक दैट्स द नीड ऑफ टाइम्स सऊदी की इन्वायरमेंट की अगर हम बात करें. बट अगर आप किसी एक नीश के अंदर, या फॉर एग्जांपल मैं फाइनेंस की पढ़ाई की बात करता हूँ, आप MBA करते हैं या चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, इन दो को ही ले लेते हैं, या CFA हैं, उसकी वैल्यू तो होगी. हाउ मच इज द डाइवर्सिफिकेशन इन योर पोर्टफोलियो वैल्यूड एज कम्पेयर टू कि ये एक ही नीश का एक एक्सपर्ट है? What recently has changed particularly कि कुछ एस्पेक्ट्स हैं, कुछ एरियाज हैं, जैसे अगर हम फाइनेंस की बात करें, देयर इज अबंडेंस ऑफ लोकल टैलेंट एज वेल. ठीक है. फिर हम बात करते हैं जो कैपेसिटी की और जो ओनरशिप लेने की बात है ना, दैट बिकम्स वन ऑफ द चैलेंजिंग पार्ट एज वेल. लेटली व्हाट वी हैव सीन, जो फ्रेश ग्रेड्स हैं सऊदी अरेबिया की यूनिवर्सिटीज के लोकल्स, बी इट मेन और वुमेन, दे आर गोइंग एट लेंथ्स. वो हार्ड वर्क और ओनरशिप लेना, trying to prove themselves, that is enhancing. इसके साथ साथ सऊदी अरेबिया के अंदर एक और जो एस्पेक्ट समझने की हमें जरूरत है, which is जो लोकलाइजेशन का उनका मैंडेट है, जिस तरह से लोकलाइजेशन चल रही है. लोकलाइजेशन के अंदर स्टार्टिंग ऑफ विद रिटेल फॉर एग्जांपल, तो रिटेल स्पेस में आया कि जी इट हैज टू बी 100% सऊदी. ओके, सो दैट ड्रॉप्स ऑफ. ठीक है. अगर आप सेल्स के बंदे हैं तो रेयरली, आई एम टॉकिंग अबाउट रिटेल स्पेस, यानी आप दुकान पे नहीं हो ऑपरेट कर सकते. फिर इस तरह देन दे मूव्ड ऑन टू अदर एस्पेक्ट्स. HR फॉर इंस्टेंस, HR अगर आप हैं तो HR कैन नॉट बी एन एक्सपर्ट. ठीक है. फिर एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ थोड़ा है. अब अगर हम फाइनेंस पर्टिकुलर बात करें, क्योंकि एक ऑब्वियसली फाइनेंस बैकग्राउंड हमारा है, फाइनेंस के अंदर द लास्ट थिंग आई वाज कंपेल्ड टू डू वाज टू हायर लोकल्स टू मीट माय लोकलाइजेशन थ्रेशोल्ड. ओके, If I'm having a team of which is bigger than 5 people, 5 manpower headcount, so I'm mandated by the legislation that I have to maintain 30% localization. ठीक है. तो यानी अगर मेरे पास 5 बंदे तो छठा सऊदी ही होगा, बल्कि 5 में पांचवा जो है वो सऊदी होना चाहिए, लोकल होना चाहिए. मिनिमम. एक तो ये चीज आती है कि ठीक है, गवर्नमेंट आपको मैंडेट कर रही है एंड इट इज पुशिंग यू, बट ऑन द अदर हैंड ये कई दफा बिजनेस को नेगेटिवली लेते हैं. बट व्हाट वी हैव सीन ओवर टाइम कि इसमें आपको ऐसा नहीं है कि रिसोर्स पूल में बंदे नहीं मिल रहे. अब आपको जो सऊदी यहाँ पे फ्रेश ग्रेड्स हैं, या जो स्टार्टिंग ऑफ देयर करियर्स के ऊपर हैं, दे आर वेरी मच इनटू ग्रैबिंग दोस अपॉर्चुनिटीज और बहुत अच्छा काम कर रहे हैं. तो वो जो एक डिपेंडेंसी थी टू फाइंड पाकिस्तानी और एन इंडियन व्हिच माइट बी सेविंग अ बिट ऑन द कॉस्ट एंड स्टफ लाइक दैट, और उनके ऊपर आप रिलाई कर सकें, ट्रस्ट कर सकें, दैट इज समथिंग व्हिच इज वर्किंग अराउंड सेम फॉर द साउदीज एज वेल. एंड आई एम टॉकिंग एट बाय एंड लार्ज. मैं सिर्फ किसी छोटी कंपनी की, 2 कंपनी की बात नहीं कर रहा, मैं बिग फोर्स की भी बात कर रहा हूँ. अगर आप जस्ट एनालाइज करें, यू आर फ्रॉम अ बिग फोर बैकग्राउंड एज वेल, तो आप ये देखें, अगर सिर्फ आप PwC के साथ एसोसिएट थे, राइट, तो द इनफ्लक्स दैट PwC वाज हैविंग फ्रॉम पाकिस्तान इन टर्म्स ऑफ सेकंडरीज उस टाइम पर एंड ओवर द पीरियड, इट हैज ड्रॉप्ड अ लॉट. सेकंडमेंट अपॉर्चुनिटीज वर द इनिशियल एंट्री पॉइंट. जो पाकिस्तानीज के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं जानता हूँ, बहुत सारे दोस्त आए जो इस स्पेस के ऊपर आए, देन दे गॉट incubated in the industry as well. So that number is going down by large. So finance, this is particularly finance. फिर हम अगर बात करते हैं इंजीनियरिंग की साइड के ऊपर, इंजीनियरिंग की साइड के ऊपर भी रेगुलेशंस ऐसी तरह लोकलाइजेशन की. फिर हम टेक्नोलॉजी की बात, टेक्नोलॉजी के ऊपर भी है.
तो वो एक एंट्री पॉइंट बैरियर जरूर है. दैट इज व्हाई आई एम सेइंग कि अगर तो आप एक इंडस्ट्री के सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट हैं, तो एनी कंपनी वुड गो एट एनी लेंथ टू गेट यू ऑन बोर्ड. ठीक है, वो आपको रखने के लिए, लोकलाइजेशन के लिए वो एक और बंदा एक्स्ट्रा भी रख लेंगे. And I'm being very very blunt and open about this. I'm not sure I should go in this way or not. लेकिन companies value the talent. और हम चार बातें करके उसको नहीं कर सकेंगे, हमें उसको प्रूव भी करना पड़ेगा, क्योंकि सस्टेन करना अपने आप को, that will become a challenge if we are not true to the mental. How I see it कि सऊदी ने खाली किसी एक सेक्टर को ऊपर नहीं उठाया, उन्होंने पूरा इकोसिस्टम बनाया उसके इर्द गिर्द. तो ये तो होता है ना, खाली अगर वो लेट्स सपोज नियोम और ये सब अपनी गीगा प्रोजेक्ट्स करते एक तरफ, लेकिन अपनी वर्कफोर्स को रेडी ना कर रहे होते, तो फिर एक गैप क्रिएट होता. सो इट्स नॉट जस्ट द डिमांड व्हिच इज गोइंग अप, इट्स द सप्लाई इज आल्सो गोइंग अप एंड व्हिच इज पावर्ड बाय रेगुलेशन ऑन टॉप ऑफ इट. तो वो फिर उस एनवायरनमेंट के अंदर सर्वाइव करना, एक्चुअली पहले तो जगह बनाना इज गोना बी वेरी ट्रिकी, एंड देन सर्वाइव करने के लिए मतलब अगर मैं आपको इसके अंदर या जस्ट एक एग्जांपल में के तौर पे, जब भी हम लोग पहले बहुत सारे दोस्त आए सऊदी अरेबिया, हमारे से पहले भी कुछ दोस्त थे, तो when people used to come to Saudi Arabia, it used to be like within a couple of months they'll find something to start off with. Now that period has prolonged to 5 months, 6 months, and sometimes people just give it up because आप एक अच्छी इन्वेस्टमेंट करके यहाँ आए होते हैं. सर्वाइवल यहाँ पे कॉस्ट ऑफ लिविंग इज वेरी हाई, स्पेशली व्हेन यू आर कन्वर्टिंग 75 to 1. ठीक है, तो इट्स नॉट समथिंग इजी फॉर एवरीबॉडी टू सस्टेन. बट हमारा जो अनफॉर्चुनेटली आप कह लें कि एक अर्जेंसी है हर एक को इस वक्त to look for other alternatives beyond Pakistan, या जो desperation है उससे, तो that is compelling us to look into these markets. और उसको मैं इसी से relate करूंगा कि be very careful in taking your steps. Every penny that you have, चाहे आपने कमाया है या आपको विरासत में मिला है, that would be very important to you, और that should be very important to you. और उसको just इस तरह के experiments के ऊपर, एक vague experiment के ऊपर, और उसने कह दिया और उसने कह दिया के ऊपर मत जाए. Do your own research, पढ़ें उस मार्केट के अंदर क्या चल रहा है. अब तो देखें, पहले लोग कहते थे कि सऊदी अरेबिया के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन बहुत कम मिलती है. राइट नाउ एवरीथिंग इज अवेलेबल ऑनलाइन. डॉक्यूमेंट्रीज हैं, पॉडकास्ट अवेलेबल हैं, हम बात कर रहे हैं इस तरह, और बहुत लोगों ने बात की सऊदी अरेबिया की मार्केट के ऊपर, जॉब मार्केट के ऊपर, कि हमेशा आपकी इवेंचुअली नेटवर्किंग रहेगी. ठीक है, आपकी स्किल तभी किसी को पता लगेगी जब किसी से आप बात करेंगे, जब किसी को बताएंगे तो ही पता लगेगा कि आप कि क्या स्किल है आपकी. ठीक है, सम पीपल कैन रीच आउट ओवर लिंक्डइन, आपको प्रोफाइल दिखेंगे. अच्छा, प्रोफाइल लिखने में भी हम काम चोरी करते हैं. ठीक है, मतलब अनफॉर्चुनेटली. तो हमें अपनी स्टोरी टेलिंग आनी चाहिए. दैट इज द की. अगर आप अपनी स्टोरी सही बता सकते हैं, सही लोगों तक पहुंचा सकते हैं, देन द अपॉर्चुनिटी इज ऑलवेज देयर फॉर यू. और इसके अंदर जितनी मर्जी टफ सिचुएशन हो, जितनी मर्जी क्राइसिस की चीजें हो, और पता नहीं इकोनॉमी तबाह हुई है, बट स्टिल विल फिगर आउट कि अगर तो आप राइट पर्सन एट द राइट टाइम, यू आर एट द राइट प्लेस विद द राइट स्किल्स, द वर्ल्ड इज ओपन फॉर यू. Is there any opportunity for investors or entrepreneurs from our part of the world in Saudi? And अगर है तो उसका क्या threshold है, मतलब दिमाग हम उसके हिसाब से सेट करें. You have to be this big to actually be there, or you have to be this good to actually be there. Sorry. A very good question actually, और ये बहुत important है, क्योंकि खास तौर पे जब हम from पाकिस्तान या इंडिया अपने बेस को चेंज करना चाहते हैं to the Middle East due to whatever situation and circumstances back home, तो हमें बड़ा जरूरी है इस चीज को अंडरस्टैंड करना कि हाउ द मार्केट रिस्पॉन्ड्स. मार्केट की जो नब्ज है उसको पकड़ना, उसको टेस्ट करना बड़ा इंपॉर्टेंट. अ मेजर मिस्टेक दैट मेनी स्टार्टअप्स दैट हैड बीन रूटेड फ्रॉम आउटसाइड सऊदी अरेबिया, वी सीन देम फ्लॉप. मैं सिर्फ पाकिस्तान से स्टार्टअप्स आने की बात नहीं कर रहा, मैं इजिप्ट की बात भी कर रहा हूँ, मैं अदर पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड की बात भी कर रहा हूँ. बिकॉज कोई भी मॉडल आप उठा लें, it is not necessary कि आपने अगर एक environment की तरफ से successful किया, then you can make it success in another environment as well. And we've seen this time and again. आप biggest नाम उठा के देख लें, Uber की आप बात करें, उससे बड़ी क्या एग्जाम्पल होगी. एक में सक्सेस, एक में फेलियर, then it try to manage its investments through different baskets. फिर करीम का टेक ओवर, because Kareem had cracked the nut in UAE, in Saudi Arabia and so on. तो आप उनकी बात करें. फिर अगर हम बात करते हैं फॉर एग्जाम्पल, and the thing is that entrepreneurship के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट है कि आप कितनी जल्दी पिवट करते हैं. आपको रियलाइजेशन, you need to come back. You don't need to stick to what you believe in. Beliefs आपके change होंगे based on the environment, based on the market that is performing and how the way it is performing. हम एग्जांपल लेते हैं, let's suppose पाकिस्तान का एक बड़ा स्टार्टअप था रिटेलो के नाम से. ठीक है, that they opened, it was similar to like an e-commerce, 15 minutes delivery and so on. Okay. So they opened up, एक मार्केट में buzz create हुआ, they started hiring people and it got shelved.
दे कुड नॉट सस्टेन. अब उसमें कुछ चीजें हैं कि ऑब्वियसली आई डोंट नो मोर अबाउट द डिटेल्स, मैं उसमें नहीं जाता, लेकिन ये है कि माइट भी उन्होंने मार्केट को सही जज नहीं किया. बिकॉज इवेंचुअली जो कहानी बाहर आई या जो सुनने में आया मार्केट के अंदर वो ये था कि जी उनको दे हैड टू फेस सम कैश फ्लो इश्यूज फ्रॉम बैक होम, फ्रॉम पाकिस्तान. तो इसका मतलब आप एक नई मार्केट में एंटर कर रहे थे एंड यू डिड नॉट हैव एन आइडिया, probably you have spent a lot which you should have spent back home in Pakistan in containing your business. तो आपने उसको सही रीड नहीं किया, या जिस थ्रस्ट और जिस एग्रेशन के साथ आप आए, जिस एग्रेसिव अप्रोच के साथ आए, you might have come with a little laid back, testing waters and stuff Collaborative like that. approach more, yeah. Exactly. तो इसलिए मार्केट को समझना, एंटरप्रेन्योरियल जो माइंडसेट है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है व्हेन इट कम्स टू पिवटिंग अराउंड आइडियाज. ठीक है, आपको एक चीज ट्राई की, एंड अगेन we've listened to a lot, we've read a lot about कि यार आजकल की मार्केट इज अबाउट डिजाइन, टेस्ट, फेल, कम बैक, रीडिजाइन, टेस्ट अगेन. You don't have time to sort of अच्छा जब तक परफेक्ट नहीं होगा तब तक नहीं जाऊंगा, जब तक इतना स्केल नहीं होगा तब तक नहीं करूंगा. नो, गो स्मॉल स्केल, स्टार्ट टेस्टिंग, वैलिडेशन लें. आप देखिए हम लोग के तो बहुत सारे स्टार्टअप्स जो हैं या बहुत सारे बिजनेसेस वो एमवीपी स्टेज के ऊपर ही फ्लॉप होकर बाहर हो जाते हैं. ठीक है, दे डोंट इवन बॉदर टू गो इनटू अ सेकंड राउंड ऑफ गिविंग इट अ थॉट कि यार अच्छा इसके जो इंडिकेटर्स या जो डायनामिक्स मैंने सेट किए थे अपने बिजनेस के लिए, तो इसमें मैं क्या चीज चेंज कर सकता हूँ टू मेक इट मोर अडेप्टेबल या मोर let's say intertwined with the environment, with the ecosystem. तो वो बड़ा इंपॉर्टेंट है. वो किसी भी आप अगर हम पाकिस्तान से आने की बात करते हैं, देयर इज ग्रेट अपॉर्चुनिटी. सऊदी अरेबिया के अंदर अगर मैं अगेन बिकॉज आई हैव बीन इन दिस सर्कल, मेरी बात लंबी हो रही है, बट द गवर्नमेंट इज सपोर्टिंग हेविली जो इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट्स हैं उनको, एंड इट इज सपोर्टिंग नॉट ओनली इन द ईज ऑफ डूइंग बिजनेस बट ऑल्सो फाइनेंशियली बाय द वे. Okay. It is easy अगर आप एक टेक कंपनी है and you plan to shift your headquarters in Saudi Arabia, they would provide you for I think 4 or 5 years of rent. They provide you 50% of the salaries of your technical जो आपका IT staff है उसकी. What more than you need? And we're talking about millions and millions of riyals. तो उस स्पेस के अंदर अगर आप हैं, if you have an idea, if you have tested somewhere, उसको आप replicate करना चाहते हैं या उसको आप यहाँ टेस्ट करना चाहते हैं, there are a lot of opportunities. And again, जैसे मैंने कहा कि this is not only for Saudi, this is for जो international investors हैं उनके लिए. फिर इसमें एक और इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट जो डेवलप हो रहा है, क्योंकि जो हमारे स्टार्टअप्स हैं नॉर्मली उनके लिए सबसे ज्यादा मुश्किल होता है क्योंकि वो फॉरेन फंडर्स, वीसीज बैक्ड बाय, दे यूजुअली बैक्ड बाय वीसीज. तो उसमें रेगुलेटरी पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ी सी किसी भी एक मुल्क के साथ एसोसिएट होना उसके लिए प्रॉब्लम्स आती हैं. तो सऊदी अरेबिया हैज ऑलरेडी अनाउंस्ड 3 फ्री जोन्स. ठीक है, जो कि हेल्प आउट करेगा. अब फॉर एग्जांपल अब आपने कंपनी स्टार्टअप मतलब स्टार्ट करना है, अगर आपको एक इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट पूल चाहिए, अगर आपको वीसीज से फंड लेना है, तो वो आपको क्या कहेंगे, आप जाएंगे केमन आइलैंड्स में रजिस्टर करें इसको, अबू धाबी के अंदर आप रजिस्टर करें, एडीजीएम के अंदर आप जो है वो पनामा में रजिस्टर करें. ठीक है, तो ये वाली चीजें जो है बेसिकली फ्री जोन्स है ना. बिल्कुल. और जो आपका वो टैक्स फ्री रिजीम्स हैं, तो उस तरह की चीजों के लिए भी फैसिलिटेशन की जा रही है. तो दैट इज कमिंग. अभी वो अनफोल्डिंग हुआ एग्जैक्टली, मतलब क्या उसका वो एक खाका क्या बनेगा, बट देयर आर अ लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज. स्पेशली मैं इवन आई वुड हाईली मतलब कमेंट ऑन दिस कि मोर देन एम्प्लॉयमेंट, एंटरप्रेन्योरशिप के लिए बहुत कुछ है. No, I think exactly. बस आपको उस लेवल पे आना है कि आप अपनी सर्विसेज वहाँ पे ऑफर कर सकें. वही बात है, लेकिन उसमें भी ब्लाइंडली नहीं जा सकते आप. इट्स अ न्यू एनवायरनमेंट. Exactly. And there are already players out there who are there to sort of get the chance. Definitely. Exactly. There is one interesting domain जिसके अंदर बहुत ज्यादा इस पर काम हो रहा है सऊदी अरेबिया में. अभी हमने इंजीनियरिंग की बात कर ली, फाइनेंस की बात कर ली, HR की बात कर ली. हेल्थ केयर. Okay. Healthcare is a massively growing industry in Saudi Arabia. Okay. And one of the things is that they are, seeking international investments into this. They're अपना पैसा बहुत डाल रहे हैं इसके अंदर to uplift यहाँ का healthcare system, to basically there is a public-private partnerships जिसके बारे में बातचीत चल रही है. Okay. Management of hospitals, clinics, बड़े research centers. तो ये बहुत बड़ा एक एरिया है जहाँ पे अगर हमारे मुल्क से लोग आते हैं, क्योंकि वी आर अ कंट्री व्हिच इज वेरी रिच एंड पॉपुलर फॉर प्रोड्यूसिंग ग्रेट इंजीनियर्स एंड डॉक्टर्स, तो दैट इज अनदर एरिया जिसके अंदर हम एक्सप्लोर कर सकते हैं, जिसके अंदर हम रिसर्च बेस्ड किसी चीजों के ऊपर बात कर सकते हैं.
So that is another area I would say. Interesting discussion, Hamza. Any final words or advice from your side? I know we've been discussing a lot of aspects और इसके अंदर already बहुत सारी advice. It's a whole package of it. लेकिन any final advice from your side that you think you can share with the audience? Yes, definitely. When it comes to exploring the opportunities in this region, I think we need to understand कि हमें अपने आप को equip कैसे करना है. तो उसके अंदर जो salient features हैं हम उनको अगर थोड़ा सा focus कर लें और उनके ऊपर अपनी working कर लें, तो I think we'll be in a better position to establish. एक तो पहले enter to the market and then establish ourselves. उसमें primarily एक चीज आती है to upskill. ठीक है, हमारी जो existing skills हैं, चाहे वो certifications के mode में हो, experience के mode में हो, whatever you may say. एक तो आपकी जो skills हैं उसको हम upskill करें. Number one. Okay. What is more important even than that is going to be your communication. What we've seen जब हम बात करते हैं networking की, जिस तरह बात करते हैं language का एक barrier है, अगर आप language को थोड़ा बहुत कर सकते हैं, that is going to be a caveat actually. Yeah, sorry, जो उसके ऊपर एक value addition होगा. तो language की बात होगी या basic mode of communication, basic जो हमारे norms हैं या जो हमारे etiquette of communication, that is very essential. How do you reach out? How do you open a discussion? How do you get into a conversation? How do you agree to disagree even? You know, तो ये बड़ा एक important aspect है जो आपके career progression में in general anywhere, but more so in this region आपको बहुत help out करता है. क्योंकि उससे आप we'll move on to the next side which is networking. कि जितना ज्यादा आप अपनी similar industry के अंदर acquaintances बना सकें, आप लोगों से जान सकें, and I would say कि go out and reach out to people not for only trying to figure out कि हमें इनसे क्या फायदा होगा, but on the contrary हम इनसे क्या सीख सकते हैं. People are usually more open कि यार अच्छा आप बताएं अपने experience के साथ कि आप हमें क्या सजेस्ट करते हैं, rather than कि I go into वो हमारा जो एक नॉर्मली अनफॉर्चुनेट तरीका होता है कि यार अच्छा आप बड़े अच्छे हैं, हम ये और वो, और then we come into कि अच्छा यार आपसे हमें क्या मिल सकता है. So rather than that, be open to learning always. And number 4, I would say very strongly कि अपने आप को, अपनी nerves को strong करें. क्योंकि जब भी आप किसी भी दूसरे मुल्क में जाते हैं, अपने मुल्क के कंफर्ट, अपने घर के कंफर्ट को छोड़ के, there are lots of challenges, not only financially but psychologically. आपको दोस्तों के साथ, I don't know, you'll be able to get that circle of friends in the earlier days. बहुत सारे अपने मुल्क के लोग, अपने दोस्त पुराने, they can come up and ditch you at some point in time, but don't take it so seriously. You are here to progress. अपने goals को identified रखें. आप किस तरफ को जा रहे हैं, किस डायरेक्शन में आपको जाना है, उस क्लैरिटी के साथ आएं. एंड डोंट थिंक अबाउट कि यार अब पीछे को जाना है. हम लोग बहुत ज्यादा एक इशू जो प्रॉब्लम मतलब जो फेस करते हैं, जो साइकोलॉजिकली इम्पैक्ट करती है बहुत से लोगों को, टाइम एंड अगेन वी हैव सीन कि वी गिव अप. वी नीड टू फिगर आउट ऑलवेज. इसीलिए नर्व स्ट्रांग रखें अपनी, एंड वी नीड टू फिगर आउट कि यार अच्छा व्हाट नेक्स्ट. अगेन हम वैल्यू कहाँ ऐड कर सकते हैं, दैट इज गोइंग टू बी द की. आपने जिस तरह पहले एक बात की थी ना अर्लियर कि फाइनेंशियल गेन जो है दैट शुड बी द बाय प्रोडक्ट, ऑल्दो आई नो वी फोकस ऑन दैट टू मच, बट वही वाली बात है कि if you're adding value, if you're being useful to someone or to an economy or to a company, an organization, automatically finance पैसे तो you will get compensated for that. Yeah, definitely. But really thank you so much, Hamza. Thank you so much for your time. Really appreciate. Thank you very much for having me. It was really a pleasure, and I hope we can add value to the people who are seeking opportunities outside the country or the geographical spaces, और इस market को जो target कर रहे हैं, and I hope that we can contribute in their success one way or the other. I hope आपको इस एपिसोड से कुछ insights मिली होंगी. अगर आपको कोई सवाल या फीडबैक हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर ऐड करें. मैं रेगुलरली आपके साथ ऐसी insights और स्टोरीज शेयर करता रहूँगा जो आपको अपना करियर पाकिस्तान से बाहर सेटअप करने में मदद देंगी. Until we meet again, Allah Hafiz.